Hello students, in the previous video I explained you how to find out the area and the perimeter of a circle. On this concept only your exercise 12.1 is based. So the first question is the area of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of the two circles. So you are provided with that the radius of two circles R1 is equal to 19 centimeter and R2 is equal to 9 centimeter. And you have to find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumference of these two circles. So first you will find out the circumference of circle with radius 19 centimeter. The formula you will apply will 2 pi r1. On solving it you will get 2 into 22 upon 7 into 19, or you can simply put pi. For solving for R2 you will get 2 into 22 upon 7 into 19. Instead of solving for pi, instead of putting the value of pi, you can even write pi in the question, because last में आपको radius ही calculate करना है. Sorry, here you will use 2 into 22 upon 7 into 9, because the radius of second circle is 9. And now the sum will be 2 pi is common to both the circle, perimeter of both the circle, and in case of r you will simply add 19 plus 9. So this is equal to 2 pi r3, which is r3 is the required radius of the circle whose circumference is equal to the sum of circumferences of the circle with radius 19 centimeter and 9 centimeter. So 2 pi will get cancelled out from both sides. So r3 will be equal to 19 plus 9, that is equal to 28 centimeter. Let's come to second question. The second question is the area of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of the areas of two circles. So now in this question the sum of area of the circle having radius 8 centimeter and 6 centimeter respectively is equal to the area of a new circle whose radii you have to find out. So what you will do, you will add the area of the two circles. The first one having the radius 8 centimeters, the formula will be pi r square, and the area of second circle will be pi multiplied by 6 square, because the radius of this circle is 6 centimeter, and this is equal to pi capital R square. I'm assuming that the new circle has the radius equal to capital R. So you can again take pi common on both the sides. So you will get pi bracket has 8 square plus 6 square, which is equal to pi r square. Pi and pi will get cancelled out on both the ends, and you will get 8 square is 64 and plus 6 square is 36 equal to r square. So you will get sum equal to 100 equal to r square, and this square when go this side will change to square root, and you will get radius equal to 10 centimeter. So the radius of the circle whose area is equal to the sum of area of two separate circles, each of radius 8 centimeter and 6 centimeter, is now 10 centimeter. Let's come to third question. Third question is figure 12.3 depicts an archery target marked its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter, and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. You have to find out the area of each of the 5 scoring region. So अब आपको अलग अलग रीजन्स के लिए डायमीटर पता है. देखो क्या गिवन है आपको सबसे पहले कि सबके रीजन मार्क्ड है वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड, एंड डायमीटर जो हर रीजन का है गोल्ड का क्या है 21 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. मतलब जो विड्थ है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब आप पहले निकालोगे गोल्ड रीजन के लिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन ओनली. वो आपका क्या आएगा पाई आर स्क्वायर. देखो आपको डायमीटर कितना गिवन था गोल्ड के लिए 21 सेंटीमीटर, तो अब उसका रेडियस क्या हो जाएगा 21/2. ये आपका आ गया एरिया गोल्ड रीजन का. सिर्फ किसके लिए आ गया आपका ये गोल्ड के लिए. ठीक है, विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू.
Now what you will do, you will find out the width of red circle. The width of red circle given to you is 10.5, क्योंकि उन्होंने बताया है कि हर रीजन की जो width है, that means this thickness from red to gold, then from red to blue, then from blue to black, and then from black to white, this is equal to 10.5 सेंटीमीटर. सो अब आप उसी के बेसिस पे पहले रेड वाले सर्कल के लिए क्या निकालोगे, रेडियस, कि सेंटर से रेड का कितना डिस्टेंस है. देखो अब आपको अगर रेड रीजन के लिए एरिया निकालना है तो पहले आप जितना बड़ा रेड सर्कल है पूरा उसका एरिया निकालोगे, उसमें से गोल्ड का एरिया माइनस कर दोगे, गोल्ड रीजन का. तो रेड रीजन का एरिया कैसे आएगा, पाई, और आर कितना लोगे. अब देखो गोल्ड के लिए आपका जो डायमीटर था वो 21 सेंटीमीटर था, रेडियस आ गया 21/2, यानी कि 21/2 आप यूज़ करोगे तो क्या आएगा, 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन और रेडियस ऑफ विड्थ ऑफ रेड सर्कल जब ऐड करोगे तो आएगा आपका रेडियस ऑफ रेड रीजन, यानी कि गोल्ड के लिए रेडियस था 10.5 और रेड के लिए विड्थ थी 10.5, तो टोटल में रेडियस कितना हो गया, 21. तो 21 सेंटीमीटर आपका गोल्ड के लिए आ गया, रेड के लिए आ गया आपका रेडियस, रेड वाले कंप्लीट सर्कल के लिए, रिंग के लिए नहीं. और आपको क्या एरिया निकालना है, सिर्फ रेड वाली रिंग का एरिया. तो रेड वाली रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, जो गोल्ड रीजन है उसका एरिया माइनस कर दोगे, रेड रीजन का और गोल्ड रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास रेड रीजन का एरिया आ जाएगा, रेड वाले सर्कल का कंप्लीट एरिया. ठीक है, यानी कि बड़े वाले का. तो क्या आएगा, पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई 10.5 स्क्वायर. जब आप इसे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास रेड वाले रीजन का एरिया आ जाएगा. अब आगे चलते हैं, अगर आपको ब्लू के लिए निकालना है तो आप वापस से क्या करोगे, आपको पता है रेड जहाँ तक सर्कल था, जहाँ तक रेड वाला रीजन है, गोल्ड और रेड का अगर मैं रेडियस ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा था, 21 सेंटीमीटर. अगर अब मुझे ब्लू वाला रीजन मिले तो मुझे उसमें वापस से क्या ऐड करना पड़ेगा, 10.5. तो यानी कि ब्लू के लिए अब रेडियस क्या हो गया, 31.5. ये हो गया आपका ब्लू वाले के लिए रेडियस. अब ब्लू के लिए, ब्लू तक का रेडियस आ गया तो आप पूरे ब्लू तक का एरिया निकालोगे, जहाँ तक ब्लू वाला रिंग जा रहा है उसमें से माइनस कर दोगे रेड वाला एरिया. तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा. रेड वाला एरिया मतलब जहाँ तक आपका रेड सर्कल था वो एरिया अगर आप माइनस कर दोगे, जैसे कि आपने रेड वाले एरिया के लिए निकालने के लिए क्या किया था, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. तो जो आपका एरिया आया था रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन का, उससे आप माइनस कर दोगे एरिया किसका, ब्लू रीजन प्लस रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन का जो एरिया है उसमें से आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग द गोल्ड रीजन. इससे आपका आ जाएगा ब्लू वाले का एरिया. सिमिलरली आप ब्लैक के लिए करोगे और सिमिलरली वाइट के लिए. कंसेप्ट बस इतना है कि पहले आप गोल्ड के लिए एरिया निकाल लोगे, वो ईजी है फाइंड आउट करना क्योंकि आपको डायमीटर प्रोवाइडेड है. उसके बाद आप क्या करोगे, आप हर रीजन तक का सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करोगे, पहले उसका एरिया निकालोगे, उसके बाद उसके एरिया में से उससे पहले वाला एरिया माइनस करोगे जो उससे पहले रिंग आ रही है, और आपके पास बचे हुए रीजन का एरिया आ जाएगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. इट स्टेज the wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? अब हर व्हील का जो आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना गिवन है आपको, 40 सेंटीमीटर एक व्हील का, विच इज़ इक्वल टू 0.4 मीटर. अगर आपको निकालना है कि एक रिवॉल्यूशन में व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जब एक आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, एक व्हील ने यहाँ से घूमना स्टार्ट करा, तो जब ये व्हील पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो यानी कि इसने अपना सर्कमफ्रेंस ही तो कवर करा. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बाय कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस व्हील. सर्कमफ्रेंस कैसे आएगा, 2π r यूज़ करके. r आपको क्या गिवन है, 0.4 मीटर. जब आप उसे यूज़ करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.8 पाई मीटर. क्योंकि रेडियस था 0.4, आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0.8. अब और आगे क्या था, पाई, तो 0.8 पाई मीटर आपके पास डिस्टेंस आ गया 1 रिवॉल्यूशन का. अब 10 मिनट्स में आपको देखना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. देखो पहले आपको दे रखा है स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर
पर आवर, और टाइम कितना दिया है आपको 10 मिनट्स। अब इन दोनों कंसेप्ट को यूज़ करके आप डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और उसके बाद आप लेट करो कि n रिवॉल्यूशन है, तो यानी कि वो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर कर रहा था 0.8 पाई, और n रिवॉल्यूशन में कितना करेगा मल्टीप्लाई बाय n, विच विल बी इक्वल टू जो डिस्टेंस आप स्पीड इनटू टाइम से निकालोगे। देखो आपको जो स्पीड दे रखी थी वो दे रखी थी 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 66,000 पर आवर। अब आपको पर मिनट निकालना है, तो 66,000 डिवाइड बाई 60, क्योंकि पहले 1 आवर था, जब आप उसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट्स आ जाएगा। आपको कितने मिनट में निकालना है 10 मिनट्स के लिए, तो क्या हो जाएगा ये 0.8 पाई इंटू n इज इक्वल टू 11,000। अब जब आप इसे सॉल्व कर दोगे पाई की वैल्यू पुट करके, तो और आपके पास 0.8 भी है, टोटल 0.8 इंटू पाई किस में जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4375। Let's move to question number 5. Take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is, अब आपको बोला गया पैरामीटर और एरिया इक्वल है, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू ए पाई आर स्क्वायर, तो आपको रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर है, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस, तो यहाँ से पावर 2 हट जाएगी, तो रेडियस कितना आ गया 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। नाउ अब ये तो हो गया आपका सोल्यूशन किसका, एक्सरसाइज 12.1 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सेक्टर होता क्या है और सेगमेंट होता क्या है। इसकी आपके पास एक क्विक रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे। सबसे पहले आते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल पे। सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट क्या हम कहते हैं, सर्कुलर सेगमेंट इज अ रीजन ऑफ ए सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सिकेंट और अ कॉर्ड। देखो हमने क्या पढ़ा, अगर आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया है, आपने उसमें एक आर्क ली, क्या ए पी बी, अगर मैं इस आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से मीट करा दूं, तो ये मेरा बनता है सेक्टर, इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो पूरा बचा हुआ रीजन है इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। और सेगमेंट वेरेस क्या होता है कि अगर मैंने एक सर्कल लिया, मैंने उसमें कॉर्ड ड्रॉ करा जिसको मैं नाम दिया ए बी, अब इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को जब मैं सेंटर से मीट, इस कॉर्ड के विदिन जो एरिया आ रहा है, मतलब कॉर्ड और आर्क के विदिन, आर्क कौन सी होगी ए पी बी, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया आता है इसे हम कहते हैं सेगमेंट। यानी कि आर्क के एंड पॉइंट्स को मिला दो तो एरिया जो आता है उस ट्राइंगल के विदिन, इस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर, पूरे कंप्लीट एरिया सेगमेंट को मिलाकर। और अगर हम कॉर्ड लें और कॉर्ड के एंड पॉइंट पे जो आर्क बन रही है उसकी एरिया लें तो उसे हम कहते हैं सेगमेंट, और ये होता है माइनर सेगमेंट। बचा हुआ पूरा आपका क्या है, ये मेजर सेगमेंट। अब हमें बात करनी है इसकी एरिया की। पहले देखो कि आप सेक्टर के लिए क्या करोगे। जब हम बात करते हैं सेक्टर की तो हमारे पास एंगल ए ओ बी हमें पता होना, जैसे आप ये फिगर देखो, यहाँ पर आपका सेक्टर क्या है, सेक्टर है ओ ए पी बी, ये आपका सेक्टर है माइनर सेक्टर, और एंगल ए ओ बी क्या कहलाएगा, आपका एंगल ऑफ दी सेक्टर। तो जो अनशेडेड रीजन है क्यू ए पी, क्यू ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी, इसे आप क्या कहोगे मेजर सेक्टर। नीचे वाला पोर्शन हो गया ओ ए पी बी का माइनर सेक्टर, और आपका जो रीजन है ओ ए क्यू बी वो हो गया आपका मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर का एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि ये वाला एंगल, ये आएगा, पूरा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, तो अगर आप 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे एंगल ए ओ बी तो आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। अब आ जाओ इस वाले पे सेगमेंट पे, तो आपका कौन सा एरिया होगा जो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, जो आपका एरिया गिवन है ए बी कॉर्ड है, और ए बी कॉर्ड पे जो एंड पॉइंट्स है वहाँ से जो आर्क है वो आपका कहलाएगा माइनर सेगमेंट। यानी कि कौन सा, ए पी बी, ये तो हो गया आपका माइनर सेगमेंट, और ए क्यू बी ये पूरा क्या हो गया मेजर सेगमेंट। ये हो गया पूरा ए क्यू बी, ये हो गया मेजर सेगमेंट, और नीचे का जो ए पी बी है ये क्या हो गया माइनर सेगमेंट। जब हम सेगमेंट और सेक्टर को लिखेंगे तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट
माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर रिस्पेक्टिवली हम लेंगे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब अगर हमें एरिया बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए सेक्टर का और सेगमेंट का, तो नेचुरली आप माइनर का कैलकुलेट करोगे, मेजर का सिर्फ तभी कैलकुलेट करोगे जब आपको बोला जाए। यानी कि अगर सिर्फ सेगमेंट लिखा है और सिर्फ सेक्टर लिखा है तो हमेशा आपको पिक्चर में लेना है माइनर वाला पार्ट, मेजर का सिर्फ तभी लेना है जब बोला जाएगा क्वेश्चन में। चलो अब इसी नॉलेज को हम यूज करके सेंटर, जैसे सपोज सेंटर ओ है, रेडियस आर है और डिग्री क्या है इसका, एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, एंगल एओ बी। देखो पूरे एरिया का, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितने एंगल के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए, और आपको कितने एंगल के लिए निकालना है, सिर्फ थीटा के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। वाई सो, जैसे सपोज आप मार्केट में गए, आपने 10 रुपीज़ की कितनी टॉफीज ली, 5, तो यानी कि 10 रुपीज़ किसके लिए है, 5 टॉफी के लिए। अगर आपको 2 टॉफीज के लिए निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 2 ही तो करोगे बाद में। ऐसे ही एंगल का हुआ, पाई आर स्क्वायर कितने डिग्री के लिए था, 360 डिग्री के लिए, और आपको सिर्फ कितने डिग्री के लिए निकालना है, थीटा डिग्री के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री जो कि आपका एंगल हो गया, डिवाइडेड बाय जो टोटल एंगल है सर्कल वो रेशियो हो गया, और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, और ये माइनर सेक्टर का ही हुआ है। और जब भी एरिया ऑफ सेक्टर बोला जाएगा तो हमेशा आप माइनर सेगमेंट सेक्टर को ही पिक्चर में लोगे। अब लेट्स मूव फर्दर। अब बात आती है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन सेक्टर। देखो अब लेंथ कैसे निकालेंगे, अब पूरी जो सर्कल की लेंथ होती है, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ और यहीं पर वापस आ जाऊँ, तो इस आर्क को, इस पूरी लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब 2 पाई आर किसके लिए, 360 डिग्री के लिए। आपको कितनी आर्क निकालनी है, सिर्फ जो इस थीटा के विद इन जो आर्क आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ए पी बी, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा, यानी कि पूरा एंगल, पूरा आपका सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर। ये रिजेंबल करा था 360 डिग्री को, ये पूरी लेंथ हो गई। और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने कितनी डिग्री के लिए, थीटा डिग्री के लिए। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। अब अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, अभी हमने सीखा था एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी का कैसे निकालेंगे। अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट किसका, ए पी बी का, तो अब हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए अगर आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर दो, सेक्टर का जो एरिया है ओ ए पी बी वाले सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दो तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो आपने क्या फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकला था, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका था एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस आपको करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सबसे पहले मैं आपको सेगमेंट का ही बताती हूँ, या पहले सेक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग मेन। अब देखो सिर्फ सेक्टर बोला तो आपको माइनर का निकालना है, कैसे आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वेरी सिंपल। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री एंगल ऑफ सेक्टर, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई बाय पाई, और आर कितना है 4, तो 4 स्क्वायर। अब ये कैसे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आ गया, 1/12 इंटू 3.14 इंटू 16। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर दोगे तो ये आपको क्या देगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना तो क्या करोगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया हटा दो माइनर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का आ जाएगा। यानी कि कंप्लीट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका कितना आया था 4.19। इससे आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू थर्ड एग्जांपल इन विच यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। जब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या था, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको गिवन है तो कैसे आया, थीटा कितना था 120 डिग्री, और अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। ये तो आ गया आपका सेक्टर का एरिया।
अब बात आती है ट्राइंगल के एरिया की। देखो ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। अगर आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल AOB। अब इन्होंने ये वाली कंस्ट्रक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। इन्होंने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB निकालने के लिए O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पर, जो लेट M पॉइंट पर कट कर रहा है AB को। तो OM क्या हो गया, AB के परपेंडिकुलर। OA इक्वल टू OB है, तो यानी कि एंगल OAB या MAO विल बी इक्वल टू एंगल MBO। ये एंगल आपका इक्वल होगा, क्यों, एक आइसोस्केलेस एक ये ट्राइंगल बना जिसका नाम था AOB। हमने O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AB पे, जिसको हमने नाम दिया M। परपेंडिकुलर तो एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं ट्राइंगल लूँ AOM और ट्राइंगल लूँ BOM, तो AO इक्वल टू BO है क्योंकि दोनों रेडियस थे, OM दोनों के पास कॉमन है, और एंगल AMO इज इक्वल टू क्या है, एंगल BMO, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। तो आपका ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। अब RHS कॉन्ग्रुएंसी से अगर आपका ट्राइंगल इक्वल है तो यानी कि आपकी ये दोनों साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब M इसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ऑफ AB। तो एंगल AOM विल बी इक्वल टू एंगल BOM। अब एंगल निकालो कैसे, पूरे ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब आपके पास क्या था, ये 90 है, ये एंगल आपके इक्वल थे, ठीक है, और आपको ये एंगल फाइंड करना है पूरा। पहले इस पूरे एंगल को निकाल लो, कैसे आएगा, 1/2 इंटू 120 डिग्री, क्योंकि अब आपने क्या बोला है कि ये जो एंगल है, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM, पूरा एंगल था 120 डिग्री, हाफ करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री, यानी कि ईच एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने क्या लेट कर लिया कि जो OM इसकी हाइट है वो किसकी इक्वल है, x सेंटीमीटर के। अब ट्राइंगल OMA लो, ट्राइंगल देखो ये वाला ट्राइंगल था, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ट्राइंगल का नाम था AOB। ट्राइंगल के लिए निकालने के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, यानी कि एक तो हमें AB लेंथ पता और एक हाइट पता। हमें क्या पता है, AO और BO, ये कितनी है, 21 ईच। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा M पे, ये मैंने आपको बता ही दिया 90 डिग्री था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो AM इक्वल टू BM हो गया और ये एंगल इक्वल हो गया। अब अगर आपको निकालना है OM की अगर आपको लेंथ निकलता है, आप कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई 90 डिग्री यहाँ पर है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब आप क्या लगाओगे इसमें, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे इसमें, क्या, कॉस 60 डिग्री, बेस पहले आएगा यानी कि OM, और अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OA। OM आपको फाइंड आउट करना है, OA की वैल्यू आपको पता है, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी कि 1/2 इक्वल टू OM, और अपॉन OA कितना था, 21। तो OM की लेंथ कितनी हो जाएगी, 21/2। ये आपके पास लेंथ आ गई OM की। अब आपके पास OM की लेंथ आ गई, यानी कि आपके पास हाइट तो आ गई है। अब देखो, जैसे अगर आप इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल AOM में, OMA बोल दो या AOM बोल दो या फिर OMA बोल दो, अगर आप वापस से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हो और अब आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, साइन 60 का, तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ये था 60 डिग्री, ये था 90, रेडियस था 21। ठीक है, चलो अब इसके अंदर अगर आपको फाइंड करना है ये वाला बेस, तो कैसे आएगा, साइन 60 डिग्री, ये था MOA, साइन 60 डिग्री इक्वल टू आपका आएगा AM, यानी कि परपेंडिकुलर वाली साइड, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AO। AM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3/2, तो √3/2 इक्वल टू AM अपॉन AO की लेंथ कितनी है, 21, तो AM की लेंथ कितनी आ जाएगी, 21 √3/2। अब आपके पास AM की लेंथ भी आ गई, आपके पास OM की भी आ गई, AM इक्वल टू BM था, तो पूरी AB की लेंथ कितनी होगी, 21 √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि AM इक्वल टू BM था, तो यानी कि 21 √3 किसकी वैल्यू हो गई, आपकी पूरी कंप्लीट AB की। तो लेंथ ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, हाफ, बेस कितना हो गया 21 √3 इंटू हाइट कितनी आ गई, हाइट आई थी 21/2,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिला 441/4 √3। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आएगा, जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आया था वो कितना आया था 462 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 441/4 √3। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। और √3 की वैल्यू पुट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करो और √3 वाला कॉलम अंदर रख दो। अब इसी के ऊपर बेस्ड आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 12.2 है। किसके ऊपर बेस्ड है ये, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया of sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of sector is 60 degree. So you are provided with the angle of sector, you are provided with the radius. So what you will do, you will simply write theta upon 360 degree into pi r square. The value of theta is 60 upon 360 into pi की वैल्यू आप क्या लोगे 22/7 क्योंकि ऊपर बता दी गई है। और रेडियस कितना गिवन है आपको, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 इंटू 6 इंटू 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल को मान लोगे r, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr और ये सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है 22 के। इसे सॉल्व कर आपको r मिल जाएगा, r की वैल्यू आपको मिलेगी 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा 7/2। ये तो आ गया आपका रेडियस।